Hello students, I welcome you all on behalf of Resonance in this analysis session in which we will be analyzing chemistry paper of JEE Advanced 2021. In this analysis, we will be getting an insight about the breakup of the chemistry paper, from which particular topic, how many questions were asked, and what is the difficulty level of these questions, and ultimately we will be assigning overall difficulty level to a chemistry paper of JEE Advanced 2021. So moving further in this analysis, we have divided chemistry into 6 parts: inorganic chemistry 1, organic chemistry 1 and physical chemistry 1. These are topics from the 11th class NCERT, and inorganic chemistry 2, physical chemistry 2 and organic chemistry 2 are topics from the NCERT 12th class. So going into the paper of this JEE Advanced 2021, from inorganic chemistry 1 and 2, total number of questions asked were 1 plus 8, that is 9 questions were from the inorganic chemistry, and total weightage of these 9 questions percentage wise is 3% plus 24%, that is 27%. It is less than 1/3 of the chemistry, that means 9 questions out of 38 questions only, and 27% out of 100%. One question was from P block, this is from nitrogen and oxygen family 15th and 16th group. Coordination chemistry से 3 questions थे, due weightage is given to coordination chemistry. Metallurgy 1 question was there, qualitative analysis 3 questions were there, and P block 17 and 18th group 1 question was there. So we can see that chemical bonding का इसमें कोई भी question नहीं आया था. Chemical bonding, which is a very important topic, but we all know that chemical bonding is involved in different inorganic chemistry topics. So this was the breakup of questions from inorganic chemistry. P block से 2 questions हैं, qualitative analysis के 3 questions हैं, and coordination compounds के 3 questions हैं, and 1 question from the metallurgy. Overall 9 questions from the inorganic chemistry side. Organic chemistry में 2 questions जो है वो 11th class की organic chemistry के थे, that is total 6% weightage of 11th class organic chemistry, and 12th class की organic chemistry से 10 questions were there. So 2 plus 10, 12 questions from the organic chemistry. Percentage wise, this is 27% plus 2 questions, 3% each, so that is 27 plus 6%. तो inorganic chemistry का अगर total weightage देखेंगे तो that is coming out to be 33%. 33% में अगर अपन further breakup देखें तो aromatic compounds के 3 questions, hydrocarbon से 3 questions थे, aldehyde ketone which is an important topic, इससे 2 questions हैं, स्टीरियोआइसोमरिज्म का 1 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल्स का 1 क्वेश्चन. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास का वेटेज जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा रहता भी है, हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस आर इन दी 12th क्लास पोर्शन ओनली, बट 33% इज ड्यू वेटेज टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम वेटेज रहा अल्टीमेटली दैट वाज बीइंग कंपनसेटेड बाय फिजिकल केमिस्ट्री वेटेज. तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखें तो 9 क्वेश्चंस वर देयर, और 12th क्लास वाला फिजिकल केमिस्ट्री 8 क्वेश्चंस वर देयर. इनका अगर फर्दर ब्रेकअप देखें तो केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी डिफिकल्ट थे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के 4 क्वेश्चंस थे. एनसीईआरटी के हिसाब से इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो है पूरा 11th क्लास की केमिस्ट्री में ही है, और थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस थे. तो थर्मोडायनेमिक्स के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और केमिकल इक्विलिब्रियम उसका क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट था. एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन वाज देयर. सो 9 क्वेश्चंस, दैट इज 24 मार्क्स, 20% is weightage of 11th class physical chemistry, and 8 questions were there from the physical chemistry of 12th class. इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th क्लास का. सॉल्यूशन एंड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज का 1 पैराग्राफ, तो 2 क्वेश्चंस जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से, एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन. तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर ओवरऑल वेटेज देखते हैं तो 39%. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज जो है जो थोड़ा सा कम रहा, ओनली 27%. फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो इस वाले पेपर में ज़्यादा था, 39%. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33%. तो इस तरह से पेपर का जो ओवरऑल लेट्स से कि ब्रेकअप है कि किस पर्टिकुलर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, किस पोर्शन से कम क्वेश्चंस पूछे गए, वो हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज क्लास वाइज वेटेज.
केमिस्ट्री में जनरली 11th क्लास को कम वेटेज दिया जाता है, कम क्वेश्चंस आते हैं और 12th वाले पोर्शन से क्वेश्चंस की संख्या जनरली ज़्यादा रहती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास की केमिस्ट्री से ही थे। इस वजह से ऐसा हुआ है कि 11th क्लास की केमिस्ट्री का जो वेटेज है, ओनली 11 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द 11th क्लास केमिस्ट्री एंड टोटल मार्क्स 32 ओनली। 12th क्लास के पोर्शन से 27 क्वेश्चंस वर देयर एंड टोटल इज 88 मार्क्स। तो इस तरह से अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 11th क्लास का 29% वेटेज रहा, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 30%, एंड क्लास 12th में 71%, 70%। केमिस्ट्री में जनरली वेटेज जो है वो 11th और 12th में 40-60 का रेशियो आता है, लेकिन इस बार जो है वो दिस इज 30-70। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दी 12th क्लास केमिस्ट्री एंड स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास वाले पोर्शन से ज़्यादा थे। फिजिकल जो है वो दोनों ही 11th और 12th क्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर का ब्रेकअप कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस 11th के थे और कितने क्वेश्चंस 12th के। देन मूविंग अहेड on difficulty level, how many questions were there from easy level and how many of moderate level and how many questions were there of difficulty level. So number of questions of easy level, 5 questions were there, total 17 marks, these were easy to score. Moderate level question जो easy to moderate भी हम कह सकते हैं, 17 questions were there, 57 marks or from moderate level questions, and difficult level questions 16 questions were there. So number of questions of, let's say, difficulty level were more in this particular paper. That's why the overall difficulty level of chemistry was on higher side. Especially जो numerical response वाले questions थे, जो पैराग्राफ वाले questions थे, उनमें calculations भी involved थी और उसमें थोड़ा सा analysis करके अपन को calculations करनी थी, analyze करना था, उसके बाद ही अपन आंसर कर पाते। तो उस तरह के questions की वजह से difficulty level chemistry में especially ज़्यादा रहा। तो हमको मालूम है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम का पैराग्राफ आया था जिसमें कि ग्राफ था, उसके बेसिस पे अपन को आंसर करना था क्वेश्चंस को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैराग्राफ वाज आल्सो देयर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पैराग्राफ वाज देयर, थर्मोडायनेमिक्स के दोनों ही क्वेश्चन जिसमें कि ग्राफ प्लॉट करने थे, आइडेंटिफाई करना था करेक्ट ग्राफ्स कौन से हैं। तो ये सभी ऐसे टॉपिक्स थे जिनकी वजह से डिफिकल्टी लेवल जो है पेपर का हायर साइड पे रहा। सो दिस इज इफ़ वी लेट्स से अगर पूरा वेटेज दिया जाए ऑन दी स्केल ऑफ 1 to 3, the overall difficulty level of chemistry paper was 2.24. 2.24 का जो overall difficulty level है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग इक्वलेंट सा है और बल्कि कह सकते हैं थोड़ा सा हायर साइड पर है। तो केमिस्ट्री का पेपर बच्चों को इनिशियली लगा था कि आसान है, क्योंकि जो बच्चे मेमोरी बेसिस पे बता रहे थे केमिस्ट्री के डिफरेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन ज़्यादातर वो थे जो उनको आसान लगे थे और उन्होंने अटैम्प्ट किए थे। लेकिन जब पेपर फाइनली जेई ने रिलीज़ किया और आखिरी तक कैलकुलेट करके देखा तो पाया गया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी। इसलिए व्हाट वी फील इज कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ केमिस्ट्री वाज ऑन द हायर साइड, सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इज 2.24. I think this particular analysis will give you insight about the chemistry paper of JEE Advanced 2021, and it will be especially helpful for the students who will be appearing in the next year's paper of JEE Advanced. So that's all for this particular session. Thank you.